پی پی کے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی علی حیدر گیلانی کی گورنر پنجاب سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ علی حیدر گیلانی نے گورنر پنجاب کو جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سید زہیب بخاری سے۔ جی زہیب بتائیے گا۔ جی بالکل، گورنر پنجاب سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور یہ اہم ملاقات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی سید علی حیدر گیلانی کی گورنر ہاؤس لاہور میں۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی کے درمیان جو ہے وہ ایک اہم ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے، اور گورنر ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں جو ہے وہ پنجاب کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی جو ہے وہ خاص طور پر تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا گیا، کیونکہ اس وقت جو بجٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ایک اہم رول جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری سے بھی جو ہے وہ علی حیدر گیلانی کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں مختلف امور پر جو ہے وہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے علی حیدر گیلانی کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خاص طور پر بات کی گئی ہے، اور ملتان شہر کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی اس ملاقات میں جو ہے وہ بات کی گئی، اور دیگر امور پر بھی جو ہے وہ علی حیدر گیلانی نے جو ہے وہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے جو ہے وہ بات چیت کی ہے۔ اور اس موقع پر جو ہے وہ علی حیدر گیلانی کے ہمراہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ملک احسن مہی بھی جو ہے وہ ان کے ہمراہ موجود تھے۔ جی شکریہ سید زہیب۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے ٹرانسپورٹرز نے موٹر ویز ہائی ویز پر ٹول ٹیکس میں اضافہ مسترد کر دیا۔ کہا کہ 40% تک اضافہ کرنا ٹرانسپورٹرز کا معاشی قتل ہے۔ جنوبی پنجاب کے ٹرانسپورٹرز نے حکومت کی جانب سے ہائی ویز اور موٹر ویز پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کو مسترد کر دیا۔ آل پاکستان ٹرانسپورٹرز اونرز فیڈریشن کے صدر رانا اصغر کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ٹول ٹیکس میں ہوش روبہ اضافہ ناقابل قبول ہے۔ 30% اضافے کی آڑ میں 35 سے 40% تک اضافہ کرنا ٹرانسپورٹرز کا معاشی قتل ہے۔ یہ ٹرانسپورٹر کا معاشی قتل ہے۔ حکومت کو خوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایک تو انہیں بجٹ میں ہمیں کچھ نہیں دیا، ہر دفعہ وعدہ تو بڑا کرتے ہیں بجٹ میں کہ ہم ٹرانسپورٹ ریلیف دے رہے ہیں، مگر ٹرانسپورٹ ریلیف دینے کے بجائے الٹا ٹرانسپورٹ خون چوسنے کی گھنونی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ٹیکس جو کہے ہیں 30% ہو چاہے 10% ہو، جو بڑھانے والا اقدام ہے وہ سراسر غلط ہے۔ رانا اصغر کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکس بڑھنے سے گڈز ٹرانسپورٹرز، آئل ٹینکرز اور پبلک ٹرانسپورٹ، انٹر سٹی بس، لوکل بس اور ویگن مالکان شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ نیشنل ہائی ویز پر ٹول ٹیکس 250 سے بڑھا کر 350 روپے کر دیا ہے، جو 40% بنتا ہے۔ M5 پر ٹول ٹیکس 3280 سے بڑھا کر 4500 کر دیا گیا ہے، جو 37% سے زائد بنتا ہے۔ M3 پر ٹول ٹیکس 1550 سے بڑھا کر 2100 روپے کر دیا گیا ہے، جو 35% سے زائد بنتا ہے۔ ٹرانسپورٹر اتنے مہنگے ٹیکس نہیں بھر سکتے۔ ٹرانسپورٹر کا بہت بڑی گھنونی سازش ان کے ساتھ ٹرانسپورٹر سے کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم تو ٹیکس دینے کے ہم ٹوکن ٹیکس میں دے رہے ہیں، ڈیلی فیول کی مدد ٹیکسز دے رہے ہیں، روڈ پبلک روڈ کی مدد ہم ٹیکس دے رہے ہیں، پاسنگ کی مدد ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہ پھر ٹول ٹیکس جو بڑھانا ہے ظالمانہ اقدام ہے، اس سے تو سب جو پہیہ چل رہا ہے وہ بھی نہیں چلے گا۔ ٹرانسپورٹرز رہنما کہتے ہیں کہ حکومت نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پر ٹول ٹیکس میں اضافے کو فوری واپس لے، ورنہ ملک بھر کے ٹرانسپورٹرز احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیمرامین محمد عامر شاہ کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ سخی سرور میں 4 دن سے گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی ہڑتال جاری۔ سٹون کرشر انڈسٹری سمیت دیگر کاروبار بند ہونے سے ہزاروں مزدور بے روزگار۔ جنوبی پنجاب میں پتھر، بجری اور ریت کی سپلائی معطل۔ سخی سرور میں ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی۔ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی ہڑتال سے معیشت کا پہیہ جام ہو گیا۔ گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن پیٹرولنگ پولیس کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ ٹرکوں کو ایکسل لوڈ مینجمنٹ کے نام پر بند کرنا اور بھاری چلان کرنا معمول بن گیا۔ 4 دن سے ہڑتال جاری، لیکن مظاہرین سے مذاکرات کے لیے کوئی آفیسر نہیں آیا۔ ہمیں انہوں نے دیا ہے 27.5 ٹن 10 ویلر گاڑی کو نا، یہ ہماری گاڑی 80 ٹن وزن اٹھا رہی تھی۔ ہمیں یہ بالکل منظور نہیں ہے، کیونکہ 16 ٹن کی تو ہماری اپنی گاڑی ہے، لیکن SSP پیٹرولنگ ڈیرہ غازی خان اور کمشنر ڈیرہ غازی خان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے ہمیں ناجائز تنگ کیا جا رہا ہے۔ روزانہ اوور لوڈ کے نام پر گاڑیوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب لوڈ کو 3 سینکڑوں سے بڑھا کر 10 سینکڑے کرے۔ سخی سرور کی معیشت اور روزگار گڈز ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں سے وابستہ ہے۔ ایکسل لوڈ مینجمنٹ کی پالیسی سے کروڑوں روپے کا روزانہ ٹرانسپورٹرز کو نقصان ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت ایکسل لوڈ مینجمنٹ کی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔
मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज धरना जारी रहेगा और जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए कोई पत्थर, बजरी और रेत सप्लाई नहीं होगी। कैमरामैन हुसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रूही सखी सरवर। जनूबी पंजाब में वॉल चौकिंग की भरमार। सुथरा पंजाब मुहिम सिर्फ कागजात तक महदूद। ज़ुबानी इश्तिहारात और पैनाफ्लेक्स से शहर की खूबसूरती मुतासिर होने लगी। मुजफ्फरगढ़ में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अमल दरामद न हो सका। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली के बायस शहर के गुंजान आबाद इलाकों में जगह जगह वॉल चौकिंग की भरमार। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लगे पैनाफ्लेक्स शहर की खूबसूरती को मुतासिर कर रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से वॉल चौकिंग को खत्म करके शहर को खूबसूरत बनाने का मुतालबा कर दिया। मियावाली में वॉल चौकिंग से शहर की खूबसूरती मुतासिर होने लगी। मुख्तलिफ मकामात पर वॉल चौकिंग से दीवारें बदनुमा नजर आ रही हैं। सरकारी और गैर सरकारी इमारतों की दीवारों को काला और नीला कर दिया गया। चीफ ऑफिसर काशिफ महमूद का कहना था कि वॉल चौकिंग के खिलाफ स्पेशल स्क्वाड काम कर रहा है। एक हफ्ते में वॉल चौकिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। वॉल चौकिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी शहर का हुस्न तबाह करने की इजाजत नहीं है। नवाबों का शहर बहावलपुर खूबसूरती में मशहूर है। शहर की दीवारों पर खूबसूरत रंगो रोगन और नायाब तारीखी इमारतों की मालूमात भी शहर की दीवारों से मिलती हैं। बहावलपुर की दीवारें रंगों की आमेजिश से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। दीवारों को कायदे आज़म और इलामा इकबाल की तस्वीर और अकवाल से मुज़य्यन किया गया है। उधर रहीम यार खान इंतजामिया ने शहर को वॉल चौकिंग फ्री बना दिया। सुथरा पंजाब मुहिम को अमली जामा पहना दिया गया। सरकारी दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस, अस्पताल और दीगर मकामात को जीरो वॉल चौकिंग कर दिया गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पर। दुकानदारों ने मनमाने रेट्स मुकर्रर कर रखे हैं। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों में कमी के बावजूद मार्केट रेट्स कम ना हो सके। सरकारी निर्खनामा में अदरक 580 और लहसुन 260 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 90, हरी मिर्च 70, टमाटर 74 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 150, हरी मिर्च 140, टमाटर 130 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। मार्केट में अरवी 200, बैंगन 90 और सब्ज धनिया 180 रुपए फी किलो है। जबकि सरकारी निर्खनामा के मुताबिक अरवी 130, बैंगन 54 और सब्ज धनिया 110 रुपए फी किलो है। शिमला मिर्च 100, करेला 40 और देसी तोरी 45 रुपए फी किलो दस्तयाब है। फलों में खुबानी 300, आलू बुखारा 400, लीची 450, फालसा 250, आड़ू 170 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। सरकारी निर्खनामा में खुबानी 150, आलू बुखारा 190, लीची 300, फालसा 140, आड़ू 120 रुपए फी किलो मुकर्रर है। सिंधरी और दुशहरी आम 140, अनवर रिटोल 160, चौंसा 150 रुपए फी किलो है। सेब 280, खरबूजा 150, गरमा 130 और तरबूजा 50 रुपए किलो दस्तयाब है। चीकू 270 और पपीता 300 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर में सहूलियात का फुकटान। अस्पताल में अमले की कमी और अद्वियात की किल्लत के साथ एक्सरे फिल्में भी नायाब हो गई। रंगपुर में महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ की मुबैना नाअहली। रूरल हेल्थ सेंटर में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल में स्टाफ की कमी के साथ अद्वियात की किल्लत और एक्सरे फिल्में भी गायब हो गईं। मरीजों का कहना था कि 2 रोज से एक्सरे करवाने आ रहे हैं, लेकिन एक्सरे रूम के बाहर फिल्में ना होने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इमरजेंसी मरीजों को 80 किलोमीटर दूर DHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ रेफर कर दिया जाता है। मेरा हादसा एक्सीडेंट हुआ है, तो कल भी मैं आया हूँ, एक्सरे वाली फिल्में नहीं है। आज भी मैं आया हूँ, फिर भी नहीं है। कहते हैं मुजफ्फरगढ़ चले जाएं, उधर से करवाएं। गरीब आदमी हम कहाँ जाएं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मरीजों का मजीद कहना था कि अस्पताल में इमरजेंसी अद्वियात समेत दिल व शुगर की अद्वियात भी दस्तयाब नहीं। एक्सरे टेक्नीशियन और डेंटल सर्जन समेत दीगर अहम असामियां अरसा दराज से खाली हैं। बड़ी आबादी के लिए रूरल हेल्थ सेंटर में सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं। बाजार से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। अस्पताल की बिल्डिंग नाकारा और ऑपरेशन थिएटर गैर फाल है। हम अपने यहाँ इलाज के लिए आते हैं, काफ़ी मसला परेशानी होती है, हमें इमरजेंसी आना पड़े, वहाँ पे हमें कोई अद्वियात नहीं मिलती। इसके अलावा अगर कोई हमारी इमरजेंसी हो जाती है, कोई सीरियस पेशेंट आ जाता है, तो ये फौरन मुल्तान या मुजफ्फरगढ़ में रेफर कर देते हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से अस्पताल में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के साथ रूरल हेल्थ सेंटर को तहसील लेवल का अस्पताल बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर।
लोधरा में 10 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती का मामला। रोही ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से मुतासरा बच्ची की इब्तदाई मेडिकल लीगल रिपोर्ट हासिल कर ली। लोधरा में 10 साला बच्ची के साथ जिनसी दरिंदे की मुबैना ज्यादती का मामला। रूही ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से मुतासरा बच्ची की इब्तदाई मेडिकल लीगल रिपोर्ट हासिल कर ली। जालिम ने मेरी बच्ची के साथ जो ज्यादती की है, मुझे इंसाफ जो है वो चाहिए हर हाल में। ठीक है, अभी तक कोई जो है वो इस मामले को आगे नहीं किया गया, ना जुडिशियल किया गया है, ना देने के लिए भेजा गया है। मुतासरा बच्ची के वालिद का कहना है कि मुल्जिम बच्ची का सगा खालू है। मुल्जिम तनवीर ने बच्ची को घर में अकेली पाकर ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि इब्तदाई मेडिको लीगल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई है। मुतासरा बच्ची के वालिद ने शिकवा किया है कि 1 जून को मुकदमा दर्ज हुआ, ताहाल डीएनए टेस्ट के लिए नहीं ले जाया गया। तफ्तीशी अफसर फौरी डीएनए टेस्ट करवाए। डीपीओ कामरान मुमताज वाकया का नोटिस ले। मुकदमा की पैरवी करने पर मुल्जिम के साथी संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुल्जिम अभी भी जो है वो, उसके रिश्तेदार अभी भी जो है वो धमकियां दे रहे हैं कि हम जो है वो आपके खिलाफ झूठी कार्रवाई करेंगे, झूठा मुकदमा दर्ज करेंगे आपके खिलाफ और आपको हम अंदर कराएंगे, आपको हम कत्ल भी करवा सकते हैं। ये बार बार मुझे धमकियां मिल रही हैं अभी तक। दूसरी तरफ डीएसपी महर इसहाक सियाल का अपने मौकफ पर कहना था कि मुल्जिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुतासरा को हर सूरत इंसाफ मिलेगा। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, रूही न्यूज, लोधरा। अब आपको बताएं कि अलीपुर में 15 साला मैट्रिक के तालिब इल्म का मुबैना अगवा। वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज। तालिब इल्म जहांजेब तहसील जतोई की नवाही इलाके में जेर तालीम था। बच्चे की तलाश जारी है, जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा, पुलिस का ऐसा कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अलीपुर में 15 साला मैट्रिक के तालिब इल्म का मुबैना अगवा का ये मामला है। वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तालिब इल्म जहांजेब तहसील जतोई की नवाही इलाके में जेर तालीम था। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि बच्चे की तलाश जारी है, जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा। म्यूनिसिपल कमेटी मियांवाली में अहम अफसरान की असामियां तैनातियों की मुंतज़िर। एमओ प्लानिंग और एमओ फाइनेंस की असामियां भी खाली हैं। ऑफिसर्स की जगह क्लर्कों से काम लिया जाने लगा। म्यूनिसिपल कमेटी मियांवाली में अहम अफसरान की आसामियां तैनातियों की मुंतज़िर हैं। शहरियों का कहना था कि तजावुज़ात के खात्मे और सरकारी अराजी पर कब्जा के मामलात MOR की ड्यूटी में शामिल होते हैं। शहर की सफाई सुथराई, खुलेआम गंदगी डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के इख्तियारात MO सर्विसेज के जिम्मा होते हैं। सड़कों की सफाई, बर वक्त मुरम्मत के काम MOI ने सर अंजाम देने होते हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों और फंड के मामलात MO फाइनेंस की जिम्मेदारी में शामिल होते हैं, मगर तमाम अफसरान की जगह क्लर्कों से काम लिया जा रहा है। चीफ ऑफिसर और एक्सियन के अलावा कोई भी ऑफिसर MC में तैनात नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर खाली असामियों को फिल किया जाए ताकि म्यूनिसिपल कमेटी शहर को तमाम तर सर्विसेज फराहम कर सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब का नौजवान को IT स्किल्स सिखाने का इक़दाम। टेफ्टा और सॉफ्टवेयर हाउसेज कंपनीज की तरफ से गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में IT स्किल्स के कोर्सेज करवाने का एहतमाम किया गया। पंजाब हुकूमत का नौजवानों को IT स्किल सिखाने का मिशन। पंजाब हुकूमत और टेफ्टा ने नौजवान तलबात का मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए अमली इकदामात का आगाज कर दिया। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहीम यार खान में टेफ्टा और सॉफ्टवेयर हाउसेज कंपनीज ने IT स्किल्स के समर कैंप का इनेकाद कराया, जिसमें मारूफ IT एक्सपर्ट रमशा खान और रहमान जहीर ने तलबा व तलबात को खसूसी आगाही लेक्चर दिए। तरबियती वर्कशॉप में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जब आप वो प्रोजेक्ट ओके करते हैं, आप उसको सेंड कर दें, आप फेसबुक पे लगाएं, बाकी सारे अकाउंट्स वगैरह से भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। IT एक्सपर्ट रमशा खान का इस मौके पर कहना था कि मौजूदा दौर IT का दौर है। इस दौर में नई नस्ल को तालीम के साथ साथ हुनर भी देना होगा। टेफ्टा के जेर एहतमाम 2 माह के समर कैंप में कंप्यूटर एप्लीकेशंस और ग्राफिक डिजाइनर्स में दीगर कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। नौजवान IT स्किल सीख कर खुद को जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग करने के साथ साथ अपना रोजगार भी कमा